Shukla, the Chairman of the Board of Governors and also the Director of NIT, all the distinguished members of Sir, I present the candidates recommended for the award of Institute Silver Medals. Silver Medal. Sir. Himanshu Raj. Utsav Banerjee. K. Satya Pareen. वरुण कुमार मांझी. काजल अग्रवाल. अनिकेत गौरव. Silver medal to Priya Agrawal for standing first among all students of Electrical and Electronics Engineering. Silver medal to Sudeshna Paul for standing first among all students of Mechanical Engineering. For standing first among all students. Sir. Thank you. Post graduate student. Hello. Hansa Kumari. The first motivation was to elevate our family and give a better living. Of course, that was the first, because we were 7 brothers. Second most strong motivation is to create employment for many others. Presently, we are employing around 5,000 people across India in various locations, having 11 plants, as I told you, in 7 locations, and manufacture most technologically advanced products such as propeller shaft, axle, transmission, all critical products we make. We also make e-axle for the EVs and many more sophisticated products using state-of-the-art facilities. RSB has been awarded most prestigious Deming Award. That RSB is willing to invest 50% of the cost of that innovation and incubation center. Of course, the 50%, balance 50% will organize through our alumni friends or elsewhere also. So with these words, because my focus today was to really
encourage, motivate you. If some of you can come forward and become an entrepreneur rather than joining a corporate, you must join. I am not saying you should not do that, but some of you should come forward who has that courage to do it. I am telling you, I am here. Whoever wants to contact me to get the guidance, I am ready to do that. Many ups and downs, but we never thought of quitting. We had to struggle more for initial 6-7 years and never get frustrated, because if you have a purpose, you pursue that with perseverance and passion, you will surely win, and of course with empathy and humility. Silver medal to Sharmishta Chatterjee for standing first among all students of postgraduate course in communication engineering. Silver medal to Anima Mahto for standing first among all students of postgraduate course in embedded systems engineering. Silver medal to Rajati Keshari Parida for standing first among all students of postgraduate course in power electronics and drive engineering. Chandan Kumar. I think convocations are always like Mr. Behra, a lot more job creators. It's easier to be a job seeker and more tougher to be a job creator. And with 1 million people joining the workforce every month in India, I think there needs to be more and more job creators. And I think today the ecosystem is much more friendly for that. I think the government is encouraging it, there is capital available in India, there is greater acceptance of entrepreneurship. There are many like you and from other good colleges in India passing out, willing to start something, and families, parents are accepting it. I think even in our time, it was very difficult to get a parent to accept that you're going to go and start something on your own. So I think it's a wonderful story, and whoever wants to get emulated, I think society will be better off with that. As you embark on your career or as you embark on the next phase of your life, I think it's useful to also reflect on what's going to happen in the next 20, 30 years, because that's going to keep changing, and it's always useful to keep thinking about the future as you plan your present. When I passed out, I don't think I spent enough time thinking about the future. I just went with the flow, took the jobs I got and the ambitions I got, and continued with it. But so much has changed in the last 36 years that I've been working. Whether it's the advent of technology, whether it is the rise of China, whether it's the breaking up of the Soviet Union, all these events happened in the last 36 years, and there will be many, many more events which will happen over the next 30, 35 years, which will impact you personally and professionally. And if as a professional you are better prepared for it, maybe you will see more opportunities than others will. So I want to talk about 5 things which I think are going to play out during your career. Some of it is already playing out, but it will keep accelerating. First and foremost, we are in a very interconnected world. Right? So earlier each country could plan to do what they wanted to do because we were quite isolated. Today it's a very interconnected world. World trade has grown significantly in the last 30 years. Global corporations have footprints across. Mr. Behra talked about his own company having factories in the US and Mexico and things like that. So increasingly geopolitical events are going to impact you directly or indirectly. If you are not a multinational kind of corporation, you will certainly have a supply chain which goes across boundaries. So one thing I find which is not there enough is that not many people are tracking geopolitical events at a young age, and I would certainly urge that. I started doing that because I spent a lot of my career in the international
business of Tata Steel, and that forced me to look at countries beyond India. So I think having that interest in what's happening around the world in current affairs, what's the impact of those geopolitical events, and how will it impact us is something which is very important, and I would urge all of you to develop an ability to do that. Even in the last 3 years, I mean, when COVID started, we all thought it was a problem in China. When Russia and Ukraine had a problem, we thought it's a problem in Europe. But it has impacted us. It has impacted the way the macroeconomic conditions have changed globally. It has impacted the price of oil. It has impacted inflation, and that has an impact on our lives. So that's the first point I want to leave you. The second point is obviously the center of gravity of economic activity has been shifting towards Asia. Like I said, China was really not in the radar when I passed out of college, but look what has happened in the last 20-30 years. Right? Hopefully India will kind of play that role over the next 20-30 years. India is going to become the most populous country in the world. It's going to become the third largest economy and will continue to grow. It already is the fastest growing large economy. In addition, you have over 500 million people in Southeast Asia who are also on an accelerated growth rate. But I think there's a huge continent out there which is still not on the radar for many, and that's Africa. And Africa has more than 1 billion people. And during the century, there are 4 billion people who are going to be added to the population of the world, and 3 billion are going to be in Africa. Right? So while during my career or my lifetime, Africa has never been as important for us to spend a lot of time on it, I'm sure that during your time, your careers, Africa will emerge as a very big and interesting place to understand. And Africa is not just one country, it is multiple countries, multiple cultures. So I think this is something which we are going to see over the next 20-30 years. The emergence of Africa, the growing importance of Africa, just like Asia was very important over the last 20-30 years, and will continue to be important thanks to India and Southeast Asia over the next 20-30 years. The third point I want to make is about technology, which I don't think I need to alert you to. I think all of you probably are deeper into technology than many of us. But I think technology has really come deep into our personal and professional lives, much more than we had imagined, particularly during COVID. Right? It has changed the way we work, it has changed the way we live, it has changed the way products and services are created or distributed or consumed. It has disrupted industries. You have competition emerging from industries or companies who you did not think was your competition, and there are so many examples of this. So I think technology is certainly going to impact everyone, every corporate, every individual in positive and negative ways over the next few decades. And I think so being on top of it, understanding what's happening, how is it going to influence anything that you're involved in, is something I think which is very important to keep track of as young professionals or young people getting out there into the workplace. The fourth thing is climate change. Again, there is a lot of discussion happening in India, but this is something which is really going to accelerate over the next 20-30 years. India has said that it will become net zero by 2070. Most of the world is at 2050. I'm sure there will be more and more pressure on this, and because this cost of this transition is going to be very complex, it's going to be expensive, it's going to be very disruptive, it's going to create new industries. A lot of, like if I look at steel, the steel industry was built on iron ore and coal, and more recently our scrap which is available which you could recycle. But linear value chains are becoming circular value chains. And circularity is becoming very important. How do you design products for repair, for reuse, for longevity? And how do you really think about the future for us in steel, looking at energy costs beyond coal, because coal is not seen as a good source of energy. Coal is a reductant for us, but you need to find other reductants like hydrogen. And maybe the best places to produce hydrogen in the world are different from the best places that we are currently producing steel. So what does it do to the steel value chain? Right? Will it shift to places where there is cheap and green hydrogen available, just like it shifted to places where there was iron ore and coal? Right? So these are the questions which we are grappling with as an industry, because this will play out over the next few decades. And how you plan for that, how you anticipate for that, how you invest for that is going to be very important. And so climate change is again going to impact all of you directly or indirectly, personally or professionally in some way or the other. And the last point which I want to keep, or want all of you to keep in mind is rising inequality. You know, while the inequality between countries in some sense is reduced as many of the developing countries got richer, but inequalities within countries have increased, whether it's a rich country or a poor country.
which is manifesting itself in multiple ways in the political ecosystem. It is manifesting itself in multiple ways in the social ecosystem. So you could take a view that, okay, it doesn't matter, I'm doing okay, but I don't think we can stay away from it. It's a problem which will again impact all of us as corporates or individuals, directly or indirectly. And that's where we need to think about what is the role we can play. Either as corporates, as Mr. Bera mentioned, what they're doing, or what Tata Steel is doing. I mean, corporates have a role to play in addressing this problem. Individuals also have a role to play in addressing this problem, at least being sensitive to it, because this is not going to be sustainable unless we address this subject going forward. And I think even over the last few years, what in India we've done with the digital infrastructure and the ability to deliver services to people who are in need of those services without any leakage, I think it's been a great development, and it just helped us even during COVID to deal with families who have been significantly impacted with COVID. So I think these are a few things which will certainly impact your journey in the next phase of your journey. At a personal level, I want you to keep in mind a few things, some of which Mr. Bera talked about. First and foremost, don't assume that education ends with the college. Right? I think once a kind of education is ended, the new education, which I would say is a tougher education, starts. Because in this new education, there is no syllabus. It's what you learn from the experience that you have. And it's not everyone is able to learn from experiences the same way. Right? Some people learn more, some people don't learn enough. And the people who learn more from their experiences are the people who will continue to benefit because they will evolve personally and professionally, because they are able to reflect on their experiences and learn from those experiences and use that to really create a future. So that education is different, is difficult, it's something that you will hopefully get better and better at when you see experience. Experience is about people who leverage that knowledge, leverage the experiences they've had to create wisdom in themselves. So to me, your ability to do that is going to be very important. Secondly, invest in the relationships that you will have. I think while all of us get consumed by our work and consumed by our commitments, please. टीवी मीडिया नेटवर्क पर हूँ और आज हमारे भारत के दो बेटियाँ जो हमारी गौरव हैं, एनआईटी से इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आपने एमसीए में हासिल किया है, तो आपको ये गोल्ड मेडल मिला और टीवी नरेंद्रन ने दिया, क्या फील कर रही हैं आप? बहुत खुशी हो रही है। इस खुशी का बयान मैं लफ्ज़ों में कर नहीं पाऊँगी, बट सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हम इस काबिल बन पाए हमारे पेरेंट्स और प्रोफेसर्स के मुताबिक कि हम लोग ये गोल्ड मेडल हासिल कर पाए। आगे क्या प्लान है बेटा, क्या करेंगे आप? अभी मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ अमेज़ॉन में। आगे मेरा यही प्लान है कि मैं इसमें कंटिन्यू करूँ और कोई अच्छी कंपनी में और स्विच करने का सोच रही अपना हूँ। नाम पूरा बताइए। मेरा नाम दिव्यांशी अग्रवाल है। ठीक है बेटा, आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहे। इंडिया टीवी ऑनलाइन हमेशा आपके साथ है। आप बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम हंसा कुमारी है। आपको किस विषय में मिला है गोल्ड मेडल आपको? सर ये मुझे सिविल में मिला है, सिविल इंजीनियरिंग में। अच्छा, और क्या प्लान है बेटा आगे? सर आगे अभी तो मैंने टाटा प्रोजेक्ट ज्वाइन किया हुआ है, तो अभी साथ में कुछ साल एक्सपीरियंस लेके देन आई विल ट्राई टू क्वालिफाई सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई हो बेटा आप दोनों को, क्योंकि आप लोगों की गौरव हमारे देश की गौरव। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से। End of one stage, or these are the future of India. ये जो बच्चे हैं, because they have 30-40 years ahead of them, and I think it's a very exciting time to start your professional career, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है देश में, और अभी आप देखिए तो बहुत मौका है देश में। आई थिंक बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और हमारा ये है कि बहुत सारे कंपनीज देख रहे हैं जो चाइना से सोर्स कर रहे थे, अभी वो लोग सोच रहे हैं कि इंडिया से भी सोर्सिंग करना है। तो आई थिंक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विल बी देयर बोथ फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स, और जैसे बेहरा जी ने बोला, जॉब क्रिएशन के लिए भी, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत मौका है। एंड आई थिंक अभी फाइनेंशियल कैपिटल भी अवेलेबल है, और एंटरप्रेन्योरशिप इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। सो आई थिंक द फ्यूचर लुक्स गुड फॉर ऑल दीज चिल्ड्रन। सर, फ्यूचरिस्टिक इंजीनियरिंग के बारे में आपने डिस्कस किया कि आगे जो 20 ईयर या 30 ईयर बाद का जो इंडिया होगा, भारत होगा, उसके लिए हमें कैसे चैलेंजेस को मीट करने होंगे सर, उसके बाद? तो एक है कि एजुकेशन इटसेल्फ हम लोग को सोचना कि कैसे हम लोग एजुकेशन कैसे वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, क्योंकि पहले तो हम जैसे जब हम लोग पास आउट किए थे, ये सोचा कि एजुकेशन होगा कॉलेज में, उसके बाद काम
में लगाएंगे। पर अभी ये कॉन्सेप्ट है कि कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, और ये भी एक बात है कि बहुत सोचा है कि 2030 के बाद जो जॉब्स है, मेनी ऑफ द जॉब्स डोंट एग्जिस्ट टुडे। तो कैसे आप अपना स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके कंटिन्यूसली आप अपने आप पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक द माइंडसेट हैज़ टू बी वेरी डिफरेंट। ये हम लोग का सोच ये था कि एजुकेशन मतलब स्कूल या कॉलेज, पर अभी एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग। तो कॉलेजेस ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट, अभी जैसे पता है हाइब्रिड चल रहा है, ये नहीं कि सब लोग हर समय कॉलेज में रहना है। सो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स विच आर इमर्जिंग। सो कॉलेजेस को भी ये देखना है और स्टूडेंट्स को भी ये अंडरस्टैंड करना है। सर, आपके विजन में 25 ईयर के बाद इंडिया का क्या वैल्यू होगा? और नहीं, सर्टेनली इट शुड बी थर्ड लार्जेस्ट, तो वैसे ही हम लोग हो जाएंगे नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। सेकेंड लार्जेस्ट होगा या नहीं वो तो डिपेंड, क्योंकि चाइना एंड यूएस आर मच अहेड ऑफ इंडिया। चाइना देखिए तो इट इज़ 4 times द साइज ऑफ इंडिया, यूएस इज़ एटलीस्ट 6 times द साइज ऑफ इंडिया। तो उन लोगों के साथ कैचअप करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, बट आई थिंक इट शुड बी अ हैप्पी प्लेस विच शुड बी इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सोशली ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। एनवायरनमेंट के ऊपर सर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ग्लोबल, हाँ, ग्लोबल तो वो है, वो एक इश्यू है जो अभी इंडिया में भी हम लोग, आपको पता है जैसे ग्रीन एनर्जी पर बहुत फोकस है, पर आप देखिए तो यूरोप में बहुत सारे काम हुआ है। तो हम लोग को देखना है कि कैसे बाकी कंट्रीज़ में कैसे ये डील कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी हम लोग नया फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये नहीं कि हम क्रिएट करके उसके बाद 10 साल 15 साल के बाद जो हम लोग क्रिएट किया उसको सुधारना है। तो वैसे हम लोग को क्लीन एंड ग्रीन फैसिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज़, आई थिंक वी आर डूइंग दैट ऑलरेडी। आप देखें तो लॉट ऑफ एनर्जी इज़ गोइंग टुवर्ड्स सोलर एंड ग्रीन एनर्जी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना डेवलप कर गया हमारा NIT आज कि हम लोगों को बहुत खुशी होती है। और हम सबको ये बोलते हैं, जो बहुत बात बोले ना कि ये जॉब क्रिएटर्स, तो हमने तो कभी टाटा स्टील में सर्विस किए 12 साल इंक्लूडिंग 1.5 साल ट्रेनिंग पीरियड, और कभी नहीं सोचे, आज भी हम नहीं चाहते हैं कि लड़का लोग या कोई भी है वो सर्विस करे और ये करे। अपना धंधा करो भाई, और उससे क्या होगा कि जॉब क्रिएट होगा, अपना को जो तुम देगा, हाँ, उससे देश की तरक्की होगी, अपनी तरक्की होगी, दोस्त मित्र जितने हैं, परिवार की तरक्की सब ही होगा। यही हमारी शुभकामना है कि लोग सब आदमी अपने ऊपर रहे, अपनी इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी, क्रेडिबिलिटी, एथिकली काम करे, अपना हार्ड वर्किंग हो। एंड जैसे हाल में हम लोग डॉक्टर ईरानी का ये कर रहे हैं, मैंने उनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए कि वो कैसे बढ़े और कैसे नाम कमाए और नेशन को कितना बिल्डअप किए। तो यही सब शुभकामना है सबके लिए। थैंक यू भैया। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन, इन टीवी मीडिया नेटवर्क में हूँ मैं, और आज हमारे परिवार की 2 प्राउड डॉटर, और ये भारत की वो बेटियां हैं कि जो अपने आप को सिद्ध कर चुकी हैं कि मैं भारत की वो बेटी हूँ कि भारत को विकसित करके रहूँगी। और इन्होंने आज 5 नवंबर को NIT में अपनी डिग्री ली है, और उस डिग्री जो टीवी नरेंद्रन और बाकी बेहरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर उन्होंने दिया है, और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो इनके NIT में बहुत सारे स्टोरीज़, बहुत सारे पढ़ने के तरीके, बहुत सारे बेहतर एजुकेशन लेने के सिस्टम इनको मिला, और इनके पेरेंट्स ने इनके साथ बहुत बड़ी आहुति और त्याग किया, जिसकी बदौलत आज ये दोनों बेटियां हमारी भारत की संबल बेटियां बनी हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति हरोड़े। आपने क्या अचीव किया है? मैंने यहाँ से डिग्री ली है MCA की। हाँ। आपको कौन सा पोजीशन मिला था? किस चीज़ में? अभी फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न मिला। मतलब ये बेटी हमारी कहाँ से आई बेटा? मैं MP से आई, और MP से आकर इसने फर्स्ट डिवीज़न लिया, और इसने साबित किया कि कहीं से चलकर कहीं पे पहुंचा जा सकता है। आप इनके फादर हैं, क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम नारायण हरोड़े जी। मेरी बेटी ज्योति हरोड़े है। हाँ। और 1400 किलोमीटर चल के आया हूँ बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। बैतूल से आप आए हैं? बैतूल एग्रीकल्चरल बेल्ट है, और हम लोग काफ़ी उसमें देखे हैं। खैर, तो आप मेरे को जहाँ तक पता है कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं, और अपनी बेटी को आपने, तो आपको कैसा फील हो रहा है आज कि आपकी बेटी, हमारी बेटी आज हमारी सिर की मुकुट बनी? सर, मुझे तो बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरी बालिका मतलब इतने ऊंचे स्तर पे पहुंची है यहाँ से, मतलब जॉब करके जी। इसलिए मैं कॉलेज प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी है कि
जॉब लगना चाहिए। आदमी इतना पैसा खर्च करके बच्चों को पढ़ाता है, और लड़के तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन लड़कियों के लिए मैंने थोड़ा सा काफ़ी हिम्मत करना जरूरी होता है, हिम्मत करना जरूरी है। जी 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 इसलिए, और मेरा शुरू से उद्देश्य यही रहा, और ये मैंने किया। जी, आप बहुत गौरव के पात्र हैं, और आप एक भारत के आप उन सपूतों में से हैं कि जो अपनी डॉटर को, अपनी बेटियों को सिरमौर समझती है। अब दूसरी बारी आती है वो उस माँ की कि चूल्हा चौकी से शुरुआत होता है, किचन से, और वो किचन से अपनी बेटी को बनाना शुरू करती है। एक बूंद के कतरे से आज इतनी बड़ी बेटी हुई, और आज इसने वो मेडल लिया और भारत माँ का नाम रोशन किया। क्या फील कर रही हैं आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज बहुत खुशी हो रही है कि आपकी तपस्या और आपकी ज़िंदगी की वो सारी मेहनत आज कामयाबी के शक्ल ले चुकी है। सफलता हासिल कर ली, बहुत खुशी हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दूसरी बेटी से बात करना चाहूँगा। बेटा, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुदेशना है। सुदेशना है। आपको कौन सा मेडल मिला? मेरे को सिल्वर मेडल मिला है, डिपार्टमेंट रैंक 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आज के डेट की डिमांड है सबसे बड़ी, क्योंकि जब इंडिया डेवलपिंग से डेवलप हो रहा है तो मैकेनिक्स और मैकेनिज्म के ऊपर ही भारत का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, और टेक्नोलॉजी भी डेवलप उसी के ऊपर करता है। तो बेटा, आज जो मेडल मिला, क्या फील कर रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम का हार्ड वर्क, इट फाइनली रिजल्टेड। थैंक्स। ओके, आप इनकी माँ हैं। ये बचपन में कैसी थी? पढ़ने में ज़्यादा होनहार थी या समान? From the childhood, she is very sincere in her studies and very good in her job and in her prospect. ये आपको तंग भी करती थी? नहीं, वो लिटिल बिट, या बिल्कुल शांत थी। बिल्कुल शांत थी। अच्छा, तो बेटा अब जब कहाँ जॉब कर रहे हैं आप? आई एम करंटली वर्किंग एट टाटा स्टील। टाटा स्टील, ग्रेट। टाटा स्टील में काम करना एक सपना होता है, और हमारी बेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। और आज इसका सोचिए कि आज नरेंद्र जी यही बात कह रहे थे कि मैं वहीं से शुरुआत किया था जहां से आज इतने बच्चे शुरू किए हैं, और कल हो सकता है कि मैं जहां बैठा हूं इनमें से कोई यहां आए और एज ए MD टाटा कंपनी को संभाले। आज से 25 साल बाद वो देख रहे थे और बता रहे थे। एज ए फादर, आपका नाम क्या है? सुब्रत पाल। सुब्रत पाल जी, आप ये बताएं कि आप जमशेदपुर में ही रहने वाले हैं, और आपकी बेटी टाटा कंपनी में काम कर रही है, और इसने बहुत बड़ा मेडल लिया है, सिल्वर मेडल लिया है। आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपनी बेटी को एक शब्द में कहना होगा तो इस मेडल लेने के बाद क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। एक शब्द कहेंगे, बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए आज बहुत ऐसे उद्गार हैं अपने पेरेंट्स का कि वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और माँ बाप जो होते हैं ना, कैसे कहते हैं ना कि धरती पे भगवान एक ऊपर और दूसरे भगवान अगर कोई नीचे हैं तो ये पेरेंट्स हैं। तो इन बच्चों को जो कामयाबी मिली है, इनके पीछे ये 2 महर्षियों का और ऋषि मुनियों का हाथ है। इन लोगों ने अपने अनुसंधान और प्रयोगशाला में इनको ऐसा ढाला कि आज ये दोनों कामयाबी का शक्ल ले चुकी हैं और भारत माँ की नाम को रोशन करने के लिए आगे बढ़ी हुई हैं। ऐसी बेटियां आगे बढ़ते रहें और ऐसे पेरेंट्स सबको मिलते रहें। इंडिया टीवी ऑनलाइन यही उम्मीद करती है भारत से। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज NIT का 12वां कन्वोकेशन प्रोग्राम, जिसमें बेहरा सर, हमारे डायरेक्टर साहब, और TV नरेंद्रन जो टाटा स्टील के MD मौजूद थे, और सैकड़ों विद्यार्थियों को इतने उत्साहपूर्ण तरीके से उनको उनके सर्टिफिकेट्स, उनके मेडल्स दिए गए, और उनके पेरेंट्स को तो क्या कहिए, हम लोगों ने बात किया तो इतने अभिभूत थे अपने NIT से कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे देश की सबसे पहली ऐसी धरोहर है जिसको इन जैसे लोगों ने संभाल के रखा है। और आज हमारे विद्यार्थियों के लिए सिरमौर संस्थान है NIT जमशेदपुर। तो मैं सबसे पहले बेहरा सर से बात करूंगा कि सर, आपने 2-3 बड़ी बातें करी। एक तो कहा कि कोई चीज़ की, स्टार्टअप्स की अगर शुरुआत होती है और हम अगर NIT के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उसमें 50% स्टेक मेरा रहेगा, क्योंकि आप एक लेजेंड और जमशेदपुर के आप पाथफाइंडर हैं, पूरे झारखंड के पाथफाइंडर हैं। इंडिया में आपकी पॉलिसी प्लानिंग ऊपर लेवल तक होती है, PM लेवल तक बात होती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप लोगों की मीटिंग और बहुत सारी बातें होती हैं। तो सर, इस विषय पे आपका क्या प्लानिंग है और क्या कहना चाहेंगे हमारे पूरे व्यूअर से और देशवासियों से? एक्चुअली हमने जो यहाँ अनाउंस किया जी, उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं एक इनोवेशन सेंटर, साथ में इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे किया जाए जी। उसमें जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है या जो भी है, उसमें जो खर्चा होगा, हमने ये अनाउंस किया कि उसका 50% हम, मतलब मेरी कंपनी उसमें इन्वेस्ट करेगी जी।
दैट वाज द रियल मीनिंग। उसमें आप बोल रहे हैं कि उसमें आगे जाके जो भी होते रहेगा उसमें आगे का बात तो आगे देखेंगे, बिकॉज देयर इज ए 2 पार्ट्स। एक तो है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना, उसका बिल्डिंग क्रिएट करना। दूसरा है उसको ऑपरेट करने के लिए जो भी उसमें ज़रूरत पड़ेगा उसमें भी लगेगा। मैं यहाँ पे अनाउंस किया कि बिल्डिंग में जो भी हमारा खर्चा हो, हम लोग एक बनाया है जिसमें कि जो भी मान लीजिए 7, 8, 9 आई डोंट नो, तो जो भी होगा फाइनल उसमें 50% हम देंगे, बाकी 50% विल ऑर्गेनाइज। हमारे एलुमनी ग्रुप वर्ल्ड वाइड कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ और कहीं से करके इसको कंप्लीट करेंगे। दैट इज़ व्हाट मेरा ये अभिप्राय था उसमें। जी सर, दूसरी बात कि आज हमारे स्टूडेंट्स ने बड़े सर्टिफिकेट्स बड़े उमंग के साथ लिए, इनका फ्यूचर कल जाने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारे तो प्लेस्ड हैं, क्योंकि अपने एनआईटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही बेस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। तो सर उन बच्चों को देखकर आपको भारत का भविष्य कैसा लग रहा है? क्योंकि आज आपने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, आप अपनी बातों को भी शेयर किया है, क्योंकि आज कम टाइम है तो बड़ी लंबी वार्ता नहीं होगी, तो उस विषय में क्या कहेंगे? बहुत उज्जवल है। अगर आप देखिएगा हमारे यहाँ से जो पास आउट करके गए हैं वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में है अभी। प्रोफेशनली भी वो काफ़ी आगे हैं। आप हमारे जो सीनियर है यहाँ पे मिस्टर पानीग्राही फर्स्ट बैच के हैं, वो यूएसए में सेटल्ड है जी। तो यूएसए में हमारे काफ़ी लोग वहाँ पे सेटल्ड है। हमारे जो निरजा के प्रेसिडेंट है जितेंद्र कुमार, वो भी यूएसए में है 40 ईयर्स, मोर देन 40 ईयर्स। मेरी एक बैचमेट है वो भी यूएसए में। सो दे आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। आप यूएसए बोलिए, ऑस्ट्रेलिया बोलिए, जर्मन बोलिए, और यूरोप के कोई भी जगह में आप बोलिए, सब जगह हमारे जो एनआईटी के पास आउट हैं दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। बहुत अच्छे पोजीशन में प्रोफेशनली भी है और अदरवाइज अपना बिजनेस में भी है। तो मेरे ख्याल से इसका उज्जवल तो बहुत भविष्य काफ़ी उज्जवल है और ये ऐसे रहेगा। और हमारे शुक्ला साहब जब तक यहाँ पे डायरेक्टर हैं वो तो आगे बढ़ाएंगे ही। काफ़ी इनकरेजिंग है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसको एनआईटी का परफॉर्मेंस को और एनहांस करने के लिए। तो हम लोग भी साथ में जो एलुमनी ग्रुप है, हम लोग भी चाहते हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकें जी इसमें, जिसमें कि एनआईटी के स्टूडेंट्स और एनआईटी के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्टिकुलरली, इसमें कैसे हम थोड़ा आगे बढ़ें। ग्रेजुएट्स जो हैं वो तो काफ़ी अच्छे पोस्टिंग हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनको ऑफ़र मिल रहा है जी। बट अभी हमारा फोकस क्या है कि हम इसके R&D जो है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। वही हम इनसे भी इंटरेक्ट करते हैं और उसको करने के लिए जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे जी। सर ये बहुत गौरव की बात है। अब मैं पानीग्राही सर से कहूँगा कि व्हाट फील्स टुडे यू आर फीलिंग नाउ। सर आप बताएं। I'm feeling really excited and great. I can't describe. Yeah. Because 2019 I came. Yeah. And there are 8 or 9 girls metallurgy came to me asking question which created the event. You know, we decided to do the Nidja, and now they are graduated. I counted all of them. So you can see, you know, that was the dream of our first principal R.P. Verma when he admitted, you know, my wife and civil engineering graduate that. And the discussion was between the principal and her father. Her father is telling me that you have to waive her exam because by admitting her, you will see a lot of girls going to be coming. And this is unbelievable. I mean, this is what and principal agreed. Principal agreed right then and there and waived the exam. We all gave exam, you know. And so that was the, you know, what the dream of those people. And I'm alive to see that, you know. I'm alive to see that the girls are all doing so great. I mean, you know, so that's one of the exciting things. I saw that. Thanks, sir. Thanks. Yes.
I really. Your story never ever going to end, na? सर कुनेश सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि बड़ी लंबी आज व्यवस्था बनी रही और काफ़ी बच्चों को आज सर्टिफिकेट दिए गए, मेडल्स दिए गए। वो बच्चे हमारे भारत के नाम रोशन करेंगे। तो बाकी सारी बातें तो सर आप लोगों ने डैश पे कहा ही है। सर उन बच्चों के लिए जो अब यहाँ से निकल करके अब सीधे डायरेक्ट अब इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, मतलब एकदम बिल्कुल अब उस जगह जा रहे हैं जहाँ से अब परफॉर्म करना है। यहाँ पर तो आपके गाइडेंस और आपके प्रोटेक्शन में थे, लेकिन अब वो ओपन फील्ड में जा रहे हैं। अब इन नेट प्रैक्टिस से डायरेक्ट पिच पे आपने उतार दिया है उनको, इतने सारे बच्चों को। तो सर उन बच्चों को क्या कहेंगे कि जो अब एकदम पिच पे उतरे हैं, अब वो रन बनाए, रन आउट ना हो, आउट ना हो और देश के लिए काफ़ी बड़ा एसेट बन सकें, क्या कहेंगे सर? मैं उनको सिर्फ 2 सेंटेंस कहूँगा कि जो भी उनको शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन और कोर वैल्यूज़, मोरल और एथिकल वैल्यूज़ दी गई हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए हर जहाँ पे भी हैं हर फील्ड में अपने आप को अग्रणी करें और लीड करें। और सिर्फ नौकरी, अपनी नौकरी के पीछे न पड़ें, कम से कम 10 को नौकरी देने की ऐसी क्षमता करें कि अपनी 10 लोगों को भी नौकरी देने की क्षमता रखें। और जहाँ पे भी जाएं, देश जहाँ पे भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, इस संस्थान का नाम और देश का नाम रोशन करें। जी बहुत बहुत थैंक्स सर। सर का कहना था कि जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। और मैं देख रहा था कि सर सर्टिफिकेट और अवार्ड दे रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सेंटिमेंटल भी थे कि उनको लग रहा था कि मेरे इतने बच्चे आज हमारे संस्थान से पास करेंगे और गेट से बाहर जाएंगे और जीवन में वो सब बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन मैं सर इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी यहाँ से गया है, पानीग्राही सर एग्जाम्पल हैं कि यहाँ से कभी अलग नहीं होता, क्योंकि आप उनको इतना कुछ दे दिए होते हैं कि दुनिया में उसी को अगर संभाले और सजा ले तो भारत माँ ही नहीं पूरे विश्व का नाम हमारे बच्चे रोशन करते हैं। सर एक मैसेज और देना चाहते हैं हम स्टूडेंट्स को सर कि अभी जो निकले, अभी जा रहे हैं जी, वो कॉरपोरेट लाइफ में जा रहे, कॉरपोरेट में ज्वाइन कर रहे हैं कैंपस से कॉरपोरेट जी। अभी कॉरपोरेट में वो अपना जो प्रोफेशनल लाइफ में जो करेंगे, दे विल अर्न मनी एंड देन उसके बाद अपना वो चलाएंगे। बट दे हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दैट दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड नेशन। इट इज़ नॉट कि अपना जो है अपना किसी तरह से आगे बढ़े और मेरा इनकम बढ़े, मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, सेल्फ सेंट्रिक ना हो, सेल्फ सेंट्रिक ना हो। उनको ये भी समझना चाहिए कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड नेशन भी है, तो वो भी ध्यान में रखना है और हर समय उसको ध्यान में रखते हुए आगे काम करें। जी जी, थैंक यू सर। सर ने ये कहा कि एकदम बिल्कुल नेशन फर्स्ट की पॉलिसी हमारी एनआईटी की हमेशा से रही है। और जब से सर आए हैं मैंने वातावरण ही देखा है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे कल बहुत सारे सजावट कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं कि भारत फर्स्ट है। उनकी सजावट और उनके उमंग में ही भारत फर्स्ट है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।